forward in this chapter. So here the next thing to understand here is about the Stokes law. See here, what is Stokes law? हमने अभी अभी ये समझा है कि what is the viscous force, what is viscosity of liquid, and how it is different for different liquids. What are its dimensions, what are its units, and what are its different things, the details. ये सब हमने देखा. अभी हम देखेंगे Stokes law. Basically, what happens is, if suppose we have a container and suppose there is a liquid, एक simple सा experiment हम करके देख सकते हैं आराम से. मान लो कि एक कंटेनर हमारे पास है. Suppose ये कंटेनर है हमारे पास, and this container actually contains some liquid filled up like this. तो यहाँ से ये लिक्विड जो है वो अंदर में भरा हुआ है इस तरह से. एक बहुत बड़ा एक टेस्ट ट्यूब है, ऐसा ही समझ लो. And suppose that we have this container, and suppose that this ये कंटेनर के ऊपर अगर हमने एक कोई भी बॉल या कोई भी एक छोटा जो स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है वो अगर हमने इसके अंदर डाल दिया इस कंटेनर के ऊपर यहाँ से, तो जैसे ये बॉल जो है वो हम यहाँ पे डाल देंगे अंदर, तो ये बॉल नीचे की तरफ जाएगा and this ball will just travel in a downward direction inside the liquid. तो यहाँ पे लिक्विड के अंदर वो जब ट्रेवल करेगा तो हम देख पाएंगे उसका जो स्पीड है वो जरूर थोड़ा कम रहेगा. अगर इसी बॉल को हमने अगर एयर में अगर ड्रॉप कर दिया तो वो जल्दी नीचे पहुंच जाएगा, नो डाउट. लेकिन जैसे हम इस बॉल को थोड़ा लिक्विड के अंदर डालते हैं तो उसकी वजह से उसका जो स्पीड है वो थोड़ा सा कम हमको मिलता है. एंड दैट इज बिकॉज अगेन यू कैन सी द विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड. लिक्विड ऑलवेज opposes any object to move through the liquid itself. तो उस लिक्विड के अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट को मूव होने के लिए ये लिक्विड जो अपोज करता है वो भी एक तरह से विस्कोसिटी की वजह से ही होता है. एंड हियर वी कैन अंडरस्टैंड दिस विस्कस फोर्स एक्चुअली acts on this ball in the upward direction which opposes its motion inside the liquid. And we have to talk about this viscous force only in the Stokes law. What does this text Stokes law tells us is simply the viscous force acting on this ball due to the liquid depends on number of factors. It depends, first thing is that it depends on the radius of the ball itself. तो जिस रेडियस से ये बॉल बना हुआ है, ये जिस रेडियस का ये बॉल बना हुआ है उसके ऊपर ये डिपेंड करता है बॉल का जो फोर्स एक्टिंग ऑन इट जो है. ऑब्वियसली जितना बड़ा बॉल होगा उतना बड़ा विस्कस फोर्स उसके ऊपर काम करेगा, और जितना छोटा बॉल है तो उतना कम विस्कस फोर्स उसके ऊपर काम करेगा, नो डाउट. But this is clear that the viscous force acting on this ball moving downwards depends directly on the radius of the ball, no doubt. Second thing which this viscous force depends upon is it depends on the velocity of the ball. Velocity, जिस velocity के साथ ये ball move हो रहा है उसके ऊपर डिपेंड करता है, और इसीलिए देखा जाता है कि जितना हाई स्पीड में बॉल मूव हो रहा होगा तो उतना विस्कस फोर्स भी ज्यादा उसके ऊपर लगेगा, नो डाउट. और जितना स्लो ये बॉल मूव हो रहा होगा तो उसके ऊपर विस्कस फोर्स भी कम लगेगा. ठीक है. तीसरी चीज जिसके ऊपर ये विस्कस फोर्स डिपेंड करता है वो है विस्कोसिटी इटसेल्फ, द कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ द लिक्विड व्हिच वी हैव डिनोटेड इट बाय eta just now. So these three things can be just combined together, and we can state down the Stokes law in these words, that the viscous force acting on any spherical body which is moving in a liquid depends upon three things: the radius of the ball, the second thing is the velocity of the ball, and the third thing is that the viscosity, coefficient of viscosity of the liquid itself. So here these are the three things which it depends upon, and precisely if we check, then the viscous force can be written to be equal to actually 6 pi into eta rv. ये एक्चुअली फॉर्मूला हमको मिल जाता है 6 pi eta rv. This is the formula for finding the viscous force acting on the ball which is moving inside the liquid. तो किसी भी लिक्विड के अंदर कोई भी बॉल जब मूव करता है तो कितना फोर्स एक्सर्ट करता है वो हमको स्टोक्स लॉ से मिलता है, which tells us simply that the force acting on any spherical body moving inside a liquid is always given by the formula
6 pi eta RV, and this is basically the Stokes law. I will repeat again. Stokes law simply tells us that the viscous force acting on a spherical body moving in a liquid depends on the radius of that body. Second thing is that it depends on the velocity of the body directly. And the third thing is that it depends on coefficient of viscosity of liquid also. And hence we can get that the total viscous force acting on any spherical body moving in a liquid is actually equal to 6 pi eta RV. This is basically the formula for the viscous force. But you have to remember that this force is directed in the opposite direction to the velocity. तो ये जो डायरेक्शन जो इस फोर्स का जो डायरेक्शन है वो वेलोसिटी के डायरेक्शन के अपोजिट में होने वाला है, डायरेक्टेड अपोजिट टू द वेलोसिटी. जिस डायरेक्शन में भी वेलोसिटी होगा तो उसके अपोजिट डायरेक्शन अंदर ये विस्कस फोर्स काम करेगा. तो याद रखिए ठीक से. Let us discuss about. So basically this force is actually directed opposite to the velocity. ये हम देख रहे थे, तो ये अच्छी तरह से याद रखिएगा. अगर बॉडी जो है वो नीचे के डायरेक्शन में अगर मूव कर रहा है तो जरूर ये जो विस्कस फोर्स है या विस्कस फोर्स जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में काम करेगा. So the force will always try to slow down the body. Remember, the force will always act in the opposite direction of velocity, and that's why it try to slows down the body. तो इस बॉडी को वो डीएक्सेलरेट या उसका वेलोसिटी कम करने के लिए ही ट्राई करता है. अगर हम सपोज बॉडी को अगर ऊपर की तरफ अगर मूव करता है बॉडी, तो उस केस में विस्कस फोर्स जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा. इफ द बॉडी इज मूविंग इनसाइड द लिक्विड इन द राइटवर्ड डायरेक्शन, then the viscous force will be acting on it in the leftward direction like this. So this happens always. तो ये हमेशा ये याद रखिए ठीक से कि viscous force is going to be acting opposite to the direction of velocity. And also remember that this viscous force depends actually on the velocity of the body. So viscous force doesn't act on a body at rest. अगर किसी बॉडी जो लिक्विड के अंदर अगर वो रखा हुआ है, सिर्फ रखा हुआ है, तो ऐसे बॉडी के ऊपर कोई विस्कस फोर्स एक्ट नहीं होगा बिल्कुल. तो जो बॉडी मूव करता है अगर वो मोशन में है तभी विस्कस फोर्स उसके ऊपर काम करेगा. अदरवाइज जो बॉडी रेस्ट में है उसके ऊपर कोई विस्कस फोर्स काम नहीं करता है, क्योंकि उसका वेलोसिटी उस केस में जीरो हुआ करता है. ये हमको अच्छी तरह समझना है. सो दिस इज द नेक्स्ट कंसेप्ट यू हैव टू स्टडी अबाउट दिस स्टोक्स लॉ. नाउ द प्रूफ ऑफ स्टोक्स लॉ इज नॉट एक्चुअली देयर इन योर सिलेबस. स्टोक्स लॉ का जो प्रूफ है वो तुम्हारे सिलेबस में तो नहीं है. So you have to accept it as it is without any proof. But उसके ऊपर और एक कंसेप्ट हमको स्टडी करना है. It's the concept of critical velocity and Reynolds number. See basically what is critical velocity and Reynolds number. अभी हमने देखा कि स्ट्रीमलाइन फ्लो और टर्बुलेंट फ्लो, इन दोनों के बारे में कि स्ट्रीमलाइन फ्लो इज वन इन विच लिक्विड कैन बी कंसिडर्ड टू बी मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ लेयर्स which are moving one above the other. ऐसे तो liquid can be considered to be moving made up of large number of layers. The first layer, the bottom layer, will be moving with very slow speed. The upper layer will be moving somewhat faster, and top layer will be moving fastest of all. So this happens in case of the liquid. तो layer to layer जो velocity है वो differ करता है, और इसलिए देखा जाता है कि streamline flow के अंदर the particles of one layer remain stick to that layer only. एक लेयर के अंदर का जो पार्टिकल है वो कभी भी दूसरे लेयर के अंदर नहीं जाता है बिल्कुल. लेकिन टर्बुलेंट फ्लो के अंदर ऐसा नहीं है. टर्बुलेंट फ्लो के अंदर एक्चुअली देयर आर नो लेयर्स. टर्बुलेंट फ्लो के अंदर हम देखते हैं कि पार्टिकल्स का जो डायरेक्शन है, वेलोसिटी का जो डायरेक्शन है वो इतना रैंडम होता है कि एक लेयर के अंदर के पार्टिकल्स किसी भी दूसरे लेयर के अंदर जा सकते हैं. इवन दूसरे लेयर के अंदर के पार्टिकल्स जो है वो पहले लेयर के अंदर आ सकते हैं. Actually there are no fixed layers, and that's why the particles of any layer can enter into any other layer, and that's why this type of flow is actually called as a streamline flow, turbulent flow. इसका हमने अभी example भी बताया था कि if suppose there is a tube which have a variable cross section like this,
तो अगर किसी ट्यूब के अंदर इस तरह से एक पॉइंट पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर क्रॉस सेक्शन उसका बढ़ता है और फिर कम होता है, तो ऐसे ट्यूब के अंदर अगर पानी फ्लो हो रहा है तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो है आगे बढ़, जब तक वो बढ़ रहा है तब तक तो उसका जो फ्लो है वो स्ट्रीमलाइन रहेगा, नो डाउट। लेकिन जैसे ही यहाँ पे आएगा तो वाटर जो है उसका वेलोसिटी का जो डायरेक्शन है वो अलग अलग पार्टिकल्स पे अलग अलग होगा, और उसकी वजह से ये जो पार्टिकल्स है यहाँ पे बिल्कुल घूमने लगेंगे, एक ही पर्टिकुलर पॉइंट पे वो घूमते रहेंगे। और उसकी वजह से हम देख सकते हैं यहाँ पे कि जो पार्टिकल्स विल बी रोटेटिंग मोशन लाइक दिस हियर, एंड देन दे विल जस्ट प्रोपोगेट फॉरवर्ड दिस ट्यूब फर्दर। तो ये पार्टिकल जो है वो आगे बढ़ेंगे इस तरह से, आगे इस तरह से। तो ये हम देख सकते हैं, दिस इज द पार्ट, this is the portion where the turbulent flow appears actually. So in case when the pipe is broad in the diameter, जैसे ये diameter बढ़ता है तो in the liquid is more likely to be turbulent here in this way. So this is the basically turbulent flow. तो लेकिन अभी ये सवाल पैदा होता है कि किसी भी लिक्विड का टर्बुलेंट बनना और स्ट्रीमलाइन रहना किसके ऊपर डिपेंड करता है एक्चुअली। उसमें एक फैक्टर आता है, उसको बोलते हैं क्रिटिकल वेलोसिटी। क्रिटिकल वेलोसिटी वी कैन से, व्हाट डू मीन बाय दिस क्रिटिकल वेलोसिटी इज, क्योंकि अगर सपोज एक पर्टिकुलर पाइप है, सपोज देयर इज सपोज अ पाइप ऑफ फिक्स्ड डायमीटर लाइक दिस, एंड सपोज दैट लिक्विड इज मूविंग थ्रू दैट पाइप एट कांस्टेंट रेट दिस वे। तो लिक्विड जो है वो इस तरफ से एंटर कर रहा है और इस तरफ एग्जिट कर रहा है, और अंदर में इस तरह से वो मूव कर रहा है पाइप के अंदर से लिक्विड, ठीक है। तो जैसे ये लिक्विड मूव कर रहा है तो जिस वेलोसिटी के साथ अभी जिस वेलोसिटी के साथ वो मूव करता है वो डिपेंड करता है इन दोनों एंड पॉइंट्स के बीच में कितना प्रेशर डिफरेंस है उसके ऊपर। तो अगर समझो कि यहाँ पे प्रेशर जो है वो P1 है और यहाँ पे जो प्रेशर है P2 है, तो इन दोनों के बीच में प्रेशर डिफरेंस जो है वो इतना सफिशिएंट है कि जिसकी वजह से ये वेलोसिटी है वो इस तरफ किसी ना किसी पर्टिकुलर वेलोसिटी के साथ ये लिक्विड मॉलिक्यूल्स इस तरफ मूव कर रहे हैं, नो डाउट। बट अगर सपोज हम प्रेशर डिफरेंस बढ़ाएंगे तो ऑब्वियसली वेलोसिटी बढ़ेगा, the liquid will have to flow at a more rate, the liquid will have to flow faster than before. So whenever the liquid pressure is increased, the liquid moves faster and the velocity of the liquid means rate of flow of liquid will get increased. तो कोई भी पर्टिकुलर पॉइंट का जो वेलोसिटी है वो जरूर इंक्रीज हो जाएगा, एवरेज वेलोसिटी विथ व्हिच द लिक्विड फ्लोज आउट will just get increased. But we can see at a particular velocity, what happens is if we go on the increasing this velocity continuously, then at a particular velocity, the flow of this liquid becomes turbulent, and the liquid particles just enters into one layer into the another layers. ये जो particles है randomly किसी भी direction में घूमने लग जाते हैं, और ऐसा जब होता है तो उस particular velocity को ही क्या बोलते हैं, critical velocity। याद रखिए ठीक से, what is critical velocity? The minimum velocity required for which at which the streamline flow just gets converted into turbulent flow. तो जो streamline flow है वो actually turbulent flow में convert हो जाएगा, it will change into turbulent flow, and such a velocity at which this happens is called as the critical velocity. Basically it's a particular velocity actually at which this happens. तो एक इसका मतलब अगर लिक्विड का जो वेलोसिटी है वो अगर देखो ठीक से, if velocity of liquid is less than that critical velocity, then we can say that Vc we can denote it by, तो Vc से अगर वो कम होगा, critical velocity से अगर कम होगा, तो उस केस में ये जो फ्लो है वो it will be most likely to be streamline, तो ये फ्लो स्ट्रीमलाइन रहेगा, नो डाउट। लेकिन अगर ये जो वेलोसिटी लिक्विड पार्टिकल्स का है वो अगर क्रिटिकल वेलोसिटी को एक्सीड कर लेता है, ज्यादा होता है, तो ऐसे केस में जो फ्लो है वो इट इज मोस्ट लाइकली टू बी टर्बुलेंट। सो दिस हैपेंस एंड दिस इज द यूज ऑफ द कांसेप्ट ऑफ द क्रिटिकल वेलोसिटी। बेसिकली critical velocity is a velocity at which the streamline flow just gets converted into turbulent flow. So if the velocity of liquid is below the critical velocity, then the flow will be streamlined, and if the flow of liquid has a velocity which is greater than critical velocity, then the flow will be necessarily turbulent, no doubt. But here one thing is to be noted here is that
किसी भी फ्लो का स्ट्रीमलाइन होना और टर्बुलेंट होना सिर्फ वेलोसिटी के ऊपर ही डिपेंड नहीं करता है, वो बहुत अलग अलग फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। जैसे हमने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे वेलोसिटी तो सेम था, लेकिन यहाँ पे जैसे ही डायमीटर बदल गया तो फ्लो जो है वो स्ट्रीमलाइन से टर्बुलेंट बन गया। तो इस तरह से कई सारी चीजें होती है जिसके ऊपर ये डिपेंड करता है कि किसी भी लिक्विड का जो फ्लो है वो स्ट्रीमलाइन होगा या टर्बुलेंट होगा। तो उसमें कुछ बातें हम समझ सकते हैं आराम से कि ये जो क्रिटिकल वेलोसिटी है, क्रिटिकल वेलोसिटी कौन से चीजों के ऊपर डिपेंड करता है वो हम अभी देखेंगे ठीक से। व्हाट डज दिस क्रिटिकल वेलोसिटी डिपेंड्स अपॉन? So it's observed from the experiments itself that this critical velocity actually depends directly on the critical velocity depends directly on the coefficient of viscosity. ये हम समझ सकते हैं आराम से, coefficient of viscosity. Obviously, क्योंकि जितना लिक्विड ज्यादा विस्कस होगा तो उतना उसका टर्बुलेंट बनने का चांस कम होगा, और उसकी वजह से वो छोटे वेलोसिटीज पे टर्बुलेंट कभी नहीं बनेगा, वो लिक्विड बहुत हाई वेलोसिटीज पे टर्बुलेंट बनेगा। जैसे हम अगर देखते हैं कि एक पाइप के अंदर अगर हम मान लो कि सेम डायमीटर के पाइप्स है और उनके अंदर अगर हम एक के अंदर हम वाटर भेजते हैं और दूसरे के अंदर सपोज हनी भेजते हैं या चलो ऑयल भेजते हैं, तो देखा जाएगा कि एक पर्टिकुलर वेलोसिटी जिसके ऊपर ये वाटर टर्बुलेंट बनता है तो वो वेलोसिटी जरूर वाटर का कम होगा, क्योंकि वाटर इज लेस विस्कस देन हनी, एंड हनी के लिए जो टर्बुलेंट बनने के लिए जो रिक्वायर्ड वेलोसिटी है, क्रिटिकल वेलोसिटी जिसको हम बोलते हैं, वो बहुत ही ज्यादा होगा। और इसीलिए हम देख सकते हैं यहाँ पे कि जितना विस्कोसिटी ज्यादा उतना वीसी मतलब क्रिटिकल वेलोसिटी भी ज्यादा, जितना विस्कोसिटी कम तो उतना क्रिटिकल वेलोसिटी भी कम। इसीलिए कहा कि क्रिटिकल वेलोसिटी एक्चुअली डिपेंड्स ऑन coefficient of viscosity of the liquid. The second thing is depend upon is this critical velocity. Actually, it depends inversely on the diameter of the pipe. Obviously, if suppose the same liquid enters into a very thin pipe like this, and the same liquid is allowed to enter into a pipe with large diameter like this, then we can see clearly that जैसे ये इसके अंदर इंटर करेगा तो इसके यहाँ पे टर्बुलेंट बनने के लिए बहुत ज्यादा क्रिटिकल वेलोसिटी यहाँ पे रखना पड़ेगा, तो जबकि यहाँ पे डायमीटर छोटा है लेकिन यहाँ पे क्रिटिकल वेलोसिटी जो है वो यहाँ पे ज्यादा हो गया। तो इसलिए हम देख सकते हैं यहाँ पे कि जहाँ पे डायमीटर कम होता है तो वहां पे क्रिटिकल वेलोसिटी ज्यादा है, और जब डायमीटर बढ़ता है, देखो यहाँ पे डायमीटर यहाँ पे बहुत ज्यादा है लेकिन यहाँ पे क्रिटिकल वेलोसिटी कम हो जाएगा, क्योंकि द लिक्विड विल बी मोर लाइकली टू बी टर्बुलेंट हियर बिकॉज देयर इज अ लार्ज स्पेस। जैसे यहाँ पे हम देख सकते हैं कि बहुत ज्यादा स्पेस है यहाँ पे लिक्विड को टर्बुलेंट बनने के लिए, और इसीलिए द चांस ऑफ the liquid will be most likely to be turbulent at low velocities, and that's why the critical velocity here will be decreased because diameter is increased. And that's why we can say clearly that the relationship between this critical velocity and diameter is simply that as diameter increases the critical velocity decreases, and if diameter is decreased critical velocity increases. Obviously जितना diameter कम होगा तो उस केस में क्रिटिकल वेलोसिटी जो है वो ज्यादा होगा, क्योंकि कम बहुत ज्यादा हाई वेलोसिटीज पे जाके वो वाटर जो है ऐसे केस में टर्बुलेंट बनेगा, क्योंकि यहाँ पे डायमीटर ही इतना छोटा है जो लिक्विड विल बी मोस्ट लाइकली टू बी मूव इन अ स्ट्रेट लाइन ओनली। यहाँ पे क्या है, कैसा है ना कि जाने लिक्विड को पास होने के लिए इधर जगह नहीं है तो घूमेगा कहाँ से, है कि नहीं। तो इसलिए हम देख सकते हैं यहाँ पे कि सीधी बात है कि जब जाने के लिए जगह नहीं है, जाने के लिए पाइप इतना नैरो है, तो उसकी वजह से यहाँ पे घूमने का सवाल ही नहीं पैदा होता। बहुत ज्यादा हाई वेलोसिटीज अगर देंगे तो हो सकता है कि वो घूम जाए, तो इसलिए यहाँ पे क्रिटिकल वेलोसिटीज बहुत छोटे नहीं होते, यहाँ पे बहुत ज्यादा हाई वेलोसिटीज पे वाटर जो है वो टर्बुलेंट बनता है, जबकि डायमीटर बढ़ाने से लिक्विड का जो क्रिटिकल वेलोसिटी है वो बहुत कम हो जाता है। इट इज एट वेरी लो वेलोसिटीज द लिक्विड इज मोर लाइकली टू बिकम टर्बुलेंट। उसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है समंदर, सी वी कैन सी वाटर जो होता है, तो वो सी का जो डायमीटर है वो बहुत बड़ा है और उसकी वजह से वहां पे टर्बुलेंस भी ज्यादा है, एंड वी कैन सी दैट दिस इज द बेस्ट एग्जांपल टू एक्सप्लेन why critical velocity depends inversely on the diameter. So this is the second thing
at which this critical velocity depends upon. The third thing which it depends upon is density. Remember, it depends inversely on density of the liquid. तो ये तीसरी चीज है जिसके ऊपर ये डिपेंड करता है, क्योंकि डेंसिटी इज डायरेक्टली कनेक्टेड विथ इनर्शिया. रिमेंबर, इनर्शिया ऑफ लिक्विड इज अ मेजर ऑफ इट्स डेंसिटी. एंड क्योंकि जितना इनर्शिया ज्यादा उतना डेंसिटी भी ज्यादा होगा जरूर. तो इसीलिए देखा जाता है कि जिस लिक्विड के अंदर इनर्शिया ज्यादा है, जो हेवी लिक्विड है, तो वो अगर इट इज मोर लाइकली टू बी टर्बुलेंट एट लेस वेलोसिटीज. एंड जो लिक्विड बहुत हल्का है, तो हल्का लिक्विड इट इज नॉट मोर लाइकली टू बी टर्बुलेंट. एंड दैट्स व्हाई इट इज वेरी डिफिकल्टली और वेरी बहुत मुश्किल से वो जाके टर्बुलेंट बनेगा जो लाइट लिक्विड है जिसका डेंसिटी बहुत कम है. तो डेंसिटी कम वाला लिक्विड बहुत हाई वेलोसिटीज पे टर्बुलेंट बनता है, और जो लिक्विड का डेंसिटी ज्यादा होता है वो कम वेलोसिटीज पे टर्बुलेंट बनता है. इसका मतलब डेंसिटी और क्रिटिकल वेलोसिटी इन दोनों के बीच में इनवर्स रिलेशनशिप तो फिक्स्ड है. और इन तीनों चीजों को अगर हम कंबाइन करेंगे तो हम बोल सकेंगे यहाँ पे कि विस्कस critical velocity actually depends on these three things: eta directly and d and rho inversely. And hence we can talk about this critical velocity and the constant of proportionality here. तो ये जो constant of proportionality है उसके बारे में अगर बात करेंगे तो उसको बोला जाता है R, which is denoted by R, which is called as Reynolds number. This is a very special number we can calculate R. It is the into eta, and that is to be divided by d into rho. तो ये जो है, this is the expression for critical velocity actually. But if we calculate the Reynolds number for any liquid flow, अगर suppose ये R का वैल्यू अगर हमने फाइंड आउट किया तो R can be written as, यही फॉर्मूला थोड़ा रिवर्स करके हम ऐसा लिख सकते हैं इसमें d rho into v, and that is to be divided by eta. तो ये जो नंबर हमको मिलता है R, इसको हम बोलते हैं रेनॉल्ड्स नंबर. एंड दिस नंबर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अब यहाँ पे V जो है, ये V इट इज नीड नॉट टू बी द क्रिटिकल वेलोसिटी ऑलवेज. इफ सपोज वी हैव अ लिक्विड व्हिच इज flowing in a pipe. Suppose there is a pipe like this whose diameter is already known, which is diameter is D, capital D suppose. And suppose the liquid which is moving here inside have a density rho suppose. So rho उसका density है, and suppose that the velocity of liquid moving inside is known, that is v, and the viscosity of liquid is also known, that is eta. तो ये चार चीजें यूज करके अगर हम ये इक्वेशन में डाल के अगर एक नंबर बनाएंगे, फाइंड करेंगे, तो वो नंबर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है. क्योंकि ये नंबर का ये सिग्निफिकेंस ऐसा है कि इफ this R is actually less than 2000, अगर ये नंबर, इसका रेनॉल्ड्स नंबर बोलते हैं, ये सब मल्टीप्लाई करके, मतलब diameter of pipe has to be kept here in the numerator. Again, the velocity of this liquid has to be kept in the numerator again, and density of the liquid has to be kept in the numerator, and eta has to be kept there in the denominator. And if we calculate all these things, तो ये सब पूरा जो कैलकुलेशन अगर हम करेंगे और उसके बाद जो हमको मिलता है एक नंबर, उसको हम रेनॉल्ड्स नंबर बोलते हैं. तो वो रेनॉल्ड्स नंबर अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो ये रेनॉल्ड्स नंबर का जो वैल्यू है वो हमको बताता है क्लियरली कि whether the flow is going to be streamlined or turbulent. So first thing is that if suppose this Reynolds number is less than 2000, then we can be sure that the flow is going to be a streamlined one. क्योंकि देखो यहाँ पे रेनॉल्ड्स नंबर का जो वैल्यू है वो 2000 से कम होना चाहिए, तब जाके हम बोल सकते हैं कि the flow is streamlined. If this Reynolds number is going to be greater than 3000, then we can be sure that the flow is going to be turbulent. ये जो फ्लो है वो टर्बुलेंट होना जरूरी है. और तीसरी बात कि अगर ये रेनॉल्ड्स नंबर जो है वो अगर 2000 से बड़ा लेकिन 3000 से छोटा है, तो ऐसे केस में the flow is said to be unpredictable. Unpredictable we can say, which means that we cannot predict whether the flow is turbulent or streamlined necessarily. It can be anything. It can be streamlined, it can be turbulent, or it can be the mixture of the two. Or even it can, sometimes it becomes streamlined, sometimes it becomes turbulent if the flow is between
2000 and 3000. So that means we cannot be sure about. तो हम यहाँ पे बिल्कुल श्योरिटी के साथ या गारंटी के साथ ऐसा नहीं बोल सकते कि ये फ्लो किस टाइप का होगा, बट जरूर यहाँ पे जब okay, so sorry. Basically, this is the significance of Reynolds number actually. If Reynolds number is less than 2000, then the streamline there is a streamline flow. देखिए अभी एक बात समझो इसमें यहाँ पे कि रेनॉल्ड्स नंबर का वैल्यू 2000 से कम कब होगा? जब या तो डायमीटर कम होगा, या तो डेंसिटी कम होगा, या तो वेलोसिटी कम होगा, या तो विस्कोसिटी ज्यादा होगा। इन चारों केसेस में हम देखते हैं कि रेनॉल्ड्स नंबर 2000 से कम होगा और उस केस में स्ट्रीमलाइन फ्लो होगा। तो स्ट्रीमलाइन फ्लो होने के लिए क्या जरूरी है? Diameter of pipe should be less, no doubt. Density of the liquid must be small, and velocity must be small. Then and then only we can get the streamline flow, and obviously viscosity must be greater, no doubt. तो ये चीजें हमको याद रखनी है। दूसरा है कि 3000 से जब ज्यादा होता है रेनॉल्ड्स नंबर का वैल्यू, तब वो जाके टर्बुलेंट फ्लो बनता है। बट रेनॉल्ड्स नंबर व्हेन कैन इट बी ग्रेटर देन 3000? तो रेनॉल्ड्स नंबर का वैल्यू बढ़ाने के लिए हमको न्यूमरेटर में जो चीजें दिख रही है उनको बढ़ाना पड़ेगा। तो डायमीटर ऑफ द पाइप मस्ट बी ग्रेटर, डेंसिटी मस्ट बी ग्रेटर, वेलोसिटी मस्ट बी ग्रेटर एंड ईटा मस्ट बी स्मॉलर। तो ये चीजें हमको यूज करनी है। तो ये सब चीजें जो है वो हमको समझनी है, उनको यूज किया जाता है डेली लाइफ के अंदर भी और इवन बहुत सारे अलग अलग एप्लीकेशंस के अंदर भी। जैसा कि हम अगर देखते हैं जैसे सलाइन होता है, तो सलाइन में से वाटर जो फ्लो होता है तो उसको ठीक से फ्लो होने के लिए ये जरूरी है कि वाटर का जो सलाइन में जो कंटेंट होता है उसका फ्लो स्ट्रीमलाइन रहे, क्योंकि वो टर्बुलेंट नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए हमको जो हाइट और जिस डायमीटर का जो पाइप यूज किया जाता है, जो डेंसिटी वो तो हम कंट्रोल नहीं कर सकते, चेंज नहीं कर सकते, विस्कोसिटी भी हम चेंज नहीं कर सकते, बट हाइट कैन बी मेजर्ड और हाइट के ऊपर ही डिपेंड करता है वो वेलोसिटी। और इसीलिए ये सब चीजें सोचनी पड़ती है कि इन ऑर्डर टू मेक दिस फ्लो स्ट्रीमलाइन we'll have to decrease the diameter, we have to decrease the velocity and decrease the density and viscosity increase। ये सब चीजें हमको याद रखनी पड़ती है, तभी जाके वो फ्लो स्ट्रीमलाइन रह पाता है। और कभी कभी हमको नेसेसरीली फ्लो जो है वो टर्बुलेंट होना एक्सपेक्टेड होता है। जैसे कोई भी चीज अगर हमको सपोज मिक्स करनी है तो उसके लिए ये जरूरी है कि फ्लो टर्बुलेंट हो, तभी तो वो जाके मिक्स होगा। जैसे हम देखते हैं कि पेंटिंग जब हम करते हैं तो एक ऑयल पेंट के अंदर अगर सपोज हम टर्पेंटाइन डाल रहे हैं तो उसके लिए हम उसको घुमाते हैं गोल गोल, उसको इस तरह से रिवॉल्व करते हैं ताकि वो दोनों एक दूसरे के अंदर प्रॉपरली मिक्स हो जाए। एंड ये जो बात है तो इसमें हम देख सकते हैं कि ये मिक्सिंग के लिए फ्लो का टर्बुलेंट होना बहुत जरूरी है। इवन मिक्सर के अंदर भी हम देखते हैं, तो मिक्सर के अंदर भी जो ब्लेड का जो साइज है और उस कंटेनर का जो साइज है वो डिपेंड करता है, और उसके ऊपर वो डिपेंड करता है कि वो फ्लो जो है टर्बुलेंट रहेगा या नहीं रहेगा, और उसके हिसाब से वो जो अंदर कंटेंट है वो मिक्स होगा या नहीं होगा, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो इस टाइप के बहुत सारे जो एप्लीकेशंस है उनके अंदर हम ये देख सकते हैं कि किस तरह से स्ट्रीमलाइन फ्लो और टर्बुलेंट फ्लो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और रेनॉल्ड्स नंबर उनको डिस्टिंग्विश करने के लिए काम करता है। मतलब रेनॉल्ड्स नंबर से हमको पता चलता है कि कोई भी फ्लो जो है वो स्ट्रीमलाइन रहेगा या टर्बुलेंट रहेगा, नो डाउट। सो अभी आज के लेक्चर में हमने जो किया वो एक बार देख लेते हैं हमारा टेक्स्ट बुक के अंदर कहाँ पे है। देखिए जैसे यहाँ पे ये सरफेस टेंशन का जो पार्ट है वो हमने कल देखा था ऑलरेडी। This is all about your surface tension. So here the next topic starts in this today's lecture, fluids in motion. तो मोशन वाले जो फ्लूइड्स होते हैं उनके बारे में हमने आज बात की। तो उसमें स्ट्रीमलाइन फ्लो, टर्बुलेंट फ्लो ये हमने देखा क्या होता है, उनके बीच में डिफरेंसेस क्या होते हैं वो भी देखा। उसके बाद ये हमने देखा क्रिटिकल वेलोसिटी एंड रेनॉल्ड्स नंबर। बेसिकली व्हाट इज क्रिटिकल वेलोसिटी एंड व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ रेनॉल्ड्स नंबर। तो 2000 से कम होता है तो क्या होता है, या 3000 से ज्यादा होता है तो क्या होता है, वो सब हमने देखा। उसके बाद हमने देखा विस्कोसिटी, what is viscosity and what is the viscous force. Basically we have seen already, even we have already seen the concept of velocity gradient, and also we have seen the Newton's law of viscosity.
which tells us simply that the force of viscosity or viscous force between any two layers of a liquid depends directly on the area of each layer, and it depends on the velocity gradient, that is the rate of change of velocity with respect to distance. And from this equation only we can get this constant eta, which is called as the coefficient of viscosity. And this coefficient of viscosity can be defined as force upon force per unit area per unit velocity gradient, and its unit is Newton second per meter square, and its CGS unit is simply dyne second per centimeter square. It is also called as poise. Remember, CGS unit of coefficient of viscosity is called poise, and there is a relationship between the CGS unit and MKS unit. Actually, 1 Newton second per meter square is equal to 10 poise. Remember, तो ये रिलेशनशिप है सीजीएस यूनिट और एमकेएस यूनिट के बीच में. उसके अलावा हमने ये भी देखा कि व्हाट इज द स्टोक्स लॉ. Whenever a body is moving inside a liquid, the viscous force acts on it, and that viscous force depends on three things. One is the viscosity of liquid, the second is radius of the object, and the third is velocity of liquid. और यही चीज है, यही रीजन है कि क्यों कोई भी शिप जो है, शिप या एरोप्लेन का जो सामने वाला जो पार्ट होता है ना, वो हमेशा पॉइंटेड या शार्प कॉर्नर वाला बनाया जाता है. क्योंकि ये बात जो हम यहाँ पे समझ रहे हैं कि रेडियस के ऊपर वो विस्कस फोर्स डिपेंड करता है. दिख रहा है यहाँ पे, विस्कस फोर्स एक्चुअली डिपेंड्स ऑन रेडियस ऑफ द स्फीयर. तो उस ऑब्जेक्ट के रेडियस पे डिपेंड करता है, मतलब ये साइज के ऊपर डिपेंड करता है. तो अगर जो शिप का जो साइज होता है वो इस टाइप का होता है, हम देख सकते हैं. तो इट्स पॉइंटेड इन द फ्रंट, पॉइंटेड इन द बैक, एंड इट्स थिकर इन द मिडल. और इसका रीजन ये होता है कि जब वाटर के अंदर ये शिप जब ट्रेवल करता है तो वाटर के द्वारा उसका जो ऑपोजिशन है वो ऑपोजिशन मिनिमम होना चाहिए, क्योंकि ऑपोजिशन जो है या विस्कस फोर्स जो है वो डिपेंड करता है रेडियस के ऊपर. और रेडियस अगर कम होगा तो ऑपोजिशन भी कम होगा, ये हम समझ सकते हैं. और उस ऑपोजिशन को या विस्कस फोर्स को कम करने के लिए ही ये जो है इसका जो उनका जो शेप है वो इस टाइप का बनाया जाता है. याद रखिएगा ठीक से. सो दिस इज ऑल अबाउट द स्टोक्स लॉ व्हिच यू हैव स्टडीड टुडे. तो अभी जो नेक्स्ट कांसेप्ट है टर्मिनल वेलोसिटी एंड व्हाट आर द इक्वेशंस एंड डेरिवेशंस, तो वो हम नेक्स्ट स्टेप में नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे. बट चलो, आज के लेक्चर में हमने ये सब किया. अभी मैं आपका सबका माइक अनम्यूट कर रहा हूँ. अगर आपको किसको कुछ भी पूछना है तो पूछ सकते हैं. Okay, so let us stop this lecture here, and remember that at 6:30 you will be having the bio lecture. Okay, तो आपका 6:30 को बायो लेक्चर भी है बायोलॉजी का, और उसका जो ये लॉगिन जो है वो ऐप में ही आपको करना है. अगर किसी को प्रॉब्लम है तो अभी बोलिए, मैं आपको ये शेयर कर सकता हूँ, मीटिंग आईडी शेयर कर सकता हूँ. उसी व्हाट्सएप पे मुझे बता दीजिएगा. तो 6:30 को बायो का लेक्चर होगा. ओके, so thank you all of you. Thanks for the lecture. I just end this lecture here.